Hello students, today we will discuss about the metastable ions or peaks. Metastable peaks can be easily determined in a mass spectrum. Some important characteristics of the peaks are they do not necessarily occur at the integral m by e values. Second one is these are much broader than the normal peaks and these are of relatively low abundance. ओके, ब्रॉडर होती है नॉर्मल पीक से और इनकी अबंडेंस भी कम होती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल आयंस की। मेटास्टेबल आयंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? कंसिडर दैट m1 प्लस इज द पेरेंट आयन एंड स्मॉल m1 इज द डॉटर आयन। यहाँ पर अगर हम कैपिटल M की बात करेंगे तो पेरेंट आयन की बात करेंगे और स्मॉल m की बात करेंगे तो डॉटर आयन की बात करते हैं। सपोज हम एक रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें पेरेंट आयन से डॉटर आयन का फॉर्मेशन होता है। इन द रिएक्शन m1 goes to m1 takes place in the source, then the daughter ion m1 may travel the whole analyzer region and is recorded as m1 plus ion. On the other hand, if the transition of capital M to small m occurs after the source exit and before arrival at the collector, then m1 plus is called a metastable ion. We know that in double focusing mass spectrophotometer there are two field-free regions. These are called drift regions. The ion pass through these regions after acceleration. The first field-free region refers to the portion of the ion path immediately before the electrostatic analyzer. The second field-free region lies between electrostatic analyzer and magnetic analyzer. आपको यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड फ्री रीजन को शो किया गया है। एन आयन विथ चार्ज E after being accelerated through a potential V volt will possess kinetic energy equal to E volt. Thus all ions arriving at A will have translational energy equal to E volt and thus energy of the ion will be independent of its mass. Now suppose the reaction m1 goes to small m1 occurs in the second field free region, then the daughter ion will have kinetic energy equal to m2 by m1 electron volt. Also the neutral particle will have kinetic energy equal to m1 minus small m1 upon m1 electron volt. It may be noted that the neutral particle is not detected by the mass spectrometer. Thus, small m1 plus ion formed in the second field free region will have less kinetic energy than it would have possessed if it were formed in the source. Clearly, the peak for the daughter ion m1 will not appear at the normal position for m1 plus on the mass scale. Instead, the signal appears at m1 square upon m1. Hence, we conclude that the position of metastable peak due to the reaction occurring in the second field free region is such that metastable ion की जो पीक आएगी उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। मेटास्टेबल आयन पीक को हम m स्टार से डिनोट करते हैं जो कि डॉटर आयन पीक का जो मास है उसके स्क्वायर अपॉन पेरेंट आयन पीक का मास वैल्यू होती है। इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फॉर ए रिएक्शन metastable has a distance below m1 on the mass scale. This distance is approximately similar to the distance that m1 lies below m1. The relative abundance of the metastable peak is often of the order of 10 की power minus 2 or less compared to the abundance of parent or the daughter ion in 70 electrovolt spectrum. यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे।
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें किस प्रकार से मेटा स्टेबल पीक की पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल पीक्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा अमीनो एनिसोल। पैरा अमीनो एनिसोल के मेटास्टेबल पीक के फॉर्मेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। द पेरेंट आयन अपीयर्स एट M/E 123। पेरेंट आयन की जो पीक होगी वो M/E 123 पर ऑब्जर्व होगी। सपोज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेरेंट आयन इनटू डॉटर आयन ड्यू टू द लॉस ऑफ मिथाइल रेडिकल, that is loss of 15 mass units, takes place in between the electrostatic and the magnetic analyzer, that is in second field free region। अगर पेरेंट आयन से डॉटर आयन के फॉर्मेशन में मिथाइल रेडिकल का लूज होता है, दैट मीन्स 15 मास यूनिट का लॉस होता है, तो उस कंडीशन में जो पोजीशन होगी मेटास्टेबल पीक की वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है जो डॉटर आयन है उसका मास का स्क्वायर अपॉन पेरेंट आयन पीक का मास की वैल्यू। तो यहाँ पर डॉटर आयन है उसकी मॉलिकुलर मास है 108, तो 108 इंटू 108 अपॉन 123। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेटास्टेबल पीक के लिए वो आएगी 94.8, जो कि डॉटर आयन के अप्रोक्सीमेटली सेम होती है एज M1 आयन इज बिलो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल विच इज लीनियर। द पोजिशन ऑफ द मेटास्टेबल पीक ड्यू टू द फॉलोइंग फ्रेगमेंटेशन इन द सेकेंड फील्ड फ्री रीजन कैन आल्सो बी डिटरमाइन। दूसरी अगर मेटास्टेबल पीक की बात करेंगे तो यहाँ पर डॉटर आयन होगा C5H6N, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन आएगी 59.2 पर। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि टोलुइन आयन है। कंसिडर द मास स्पेक्ट्रम ऑफ टोलुइन। टू स्ट्रॉन्ग पीक्स एट M/E 91 एंड एट M/E 65 आर फॉर्म्ड। द पीक एट M/E 91 इज ड्यू टू द formation of troponium ion that is stable, which loses a molecule of acetylene, that means 26 mass units to give C5H5 plus जिसकी M/E वैल्यू है 65। टोलुइन एक हाइड्रोजन रेडिकल को लूज करके बेंजिल कैटायन बनाता है जो रीअरेंजमेंट के द्वारा ट्रोपोलियम कैटायन का फॉर्मेशन करता है, और उसमें से एसिटिलिन के मॉलिक्यूल के रिमूव होने पर C5H5 का फॉर्मेशन होता है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रोपोलियम आयन है उसके ट्रांजिशन में उसका ट्रांजिशन होता है C5H5 प्लस में इन द सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में। देन द मेटास्टेबल पीक इज फॉर्म्ड। द पोजिशन ऑफ द ब्रॉड मेटास्टेबल पीक इज डिटरमाइंड एज, हम फॉर्मूले से मेटास्टेबल पीक की पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो आएगी 46.4 पर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। मेटास्टेबल पीक की क्या इम्पोर्टेंस होती है। द मेटास्टेबल पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम ग्रेटली कंट्रीब्यूट इन स्ट्रक्चर इलुसिडेशन। स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पेरेंट आयन एंड द डॉटर आयन द पोजिशन ऑफ मेटास्टेबल आयन इज कैलकुलेटेड एज अबव एंड कंफर्म इन द स्पेक्ट्रम अंडर एग्जामिनेशन। फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं और स्पेक्ट्रम में उसको हम कंफर्म करते हैं। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टोलुइन द फॉर्मेशन ऑफ लेस इंटेंस मेटास्टेबल पीक एट 46.4 lends weight to the structure of toluene. It is due to the fragmentation of C7H7 plus ion to C5H5 plus ion in the second field free region. Similarly, the presence of metastable peaks at the expected positions of the suspected compound lends weight to its structure. अब हम बात करेंगे कि metastable peaks broad क्यों होती है। Why metastable peaks are broadened? The most likely reason for the broadening of the metastable peak is the possibility that some of the excitation energy leading to bond capture may be converted into additional
काइनेटिक एनर्जी में। जो एक्साइटेड एनर्जी है वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो बात हुई मेटास्टेबल पीक की। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन रूल की, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, द नाइट्रोजन रूल। Many signals or peaks can be ruled out as possible molecular ions simply on the grounds of reasonable structural requirements. The nitrogen rule is often helpful in this regard. States that a molecule of even numbered molecular mass must contain no nitrogen atom or an even number of nitrogen atom. इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल इवन नंबर में मॉलिकुलर मास रखता है तो इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि या तो उसमें नाइट्रोजन एटम एब्सेंट है या फिर अगर प्रेजेंट है तो वो भी इवन नंबर में ही प्रेजेंट है। एन ऑड नंबर्ड मॉलिकुलर मास रिक्वायर्स एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर मॉलिकुलर मास ऑड नंबर में है तो उसके लिए नाइट्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट भी ऑड नंबर में ही होती है। दिस रूल होल्ड्स फॉर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। और ये सभी कंपाउंड्स के लिए ये रूल लागू होता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट corollary of this rule states that the fragmentation at a single bond gives an odd numbered ion fragment from an even numbered molecular ion. इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड के क्लीवेज से ऑड नंबर वाले फ्रेगमेंट आयन का फॉर्मेशन होता है और इवन नंबर्ड मॉलिकुलर आयन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली एन इवन नंबर्ड आयन फ्रेगमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑड नंबर्ड मॉलिकुलर आयन। और इवन नंबर्ड के आयन के फ्रेगमेंट का फॉर्म होता है ऑड नंबर्ड वाले मॉलिकुलर आयन के फ्रेगमेंटेशन से। For this corollary to hold, the fragment ion must contain all the nitrogen atoms of the molecular ion. To explain the nitrogen loop, let us consider nitrobenzene. नाइट्रोबेंजीन के एग्जाम्पल से हम इस नाइट्रोजन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। The signal for molecular ion appears at m/e 123, that is at odd numbered molecule mass, since the compound contains only one nitrogen एटम। इस मॉलिक्यूल के लिए 123 m/e पर मॉलिकुलर आयन पीक ऑब्जर्व होती है, जो ये इंफॉर्मेशन देती है कि इस कंपाउंड में ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, क्योंकि जो मॉलिकुलर मास है वो भी ऑड नंबर है। टू इम्पॉर्टेंट आयन फ्रेगमेंट्स विच आर फॉर्म्ड इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड आर NO2+ एट m/e 46 एंड NO+ एट m/e 30। यहाँ पर दो फ्रेगमेंट आयन पीक आती है जो कि NO2+ और NO+ की वजह से आती है, जो कि यहाँ पर इवन मास नंबर की होती है। कंसिडर ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। अब हम उस कंपाउंड को लेकर चलते हैं जिसमें इवन नंबर में या 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। इसकी मॉलिकुलर आयन जो पीक है वो m/e 184 पर ऑब्जर्व होती है, जो कि एक इवन नंबर है। और फ्रेगमेंट आयन अपीयर्स एट m-h, दैट इज 183, एंड m-h-co, दैट इज 155। Thus, we see that the fragment ion containing both the nitrogen atoms appear at odd mass number. तो यहाँ पर जो दोनों पीक है वो क्या है, odd नंबर वाली पीक है। This proves the validity of the nitrogen rule, जो यहाँ पर नाइट्रोजन रूल की वैलिडिटी को प्रूव करती है। तो नाइट्रोजन रूल को अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अगर किसी भी मॉलिकुलर आयन पीक है वो अगर इवन नंबर है तो वहाँ पर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा,
और वहाँ पर जो फ्रेगमेंट आयन पीक होगी वो इवन नंबर में होगी। और अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑड नंबर में है तो उसका मतलब होगा कि वहाँ पर नाइट्रोजन जो एटम्स हैं वो इवन नंबर में होंगे और वहाँ पर जो फ्रेगमेंट आयन है वो ऑड नंबर में आपको ऑब्जर्व होंगे। यही रूल क्या कहलाता है? नाइट्रोजन रूल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड्स की।